سے پہلے رخ کریں گے کوہ سلیمان کا۔ کوہ سلیمان میں موسلادھار بارشوں سے قبائلیوں کی زندگی نہ رہی آسان، بڑے بڑے برساتی ریلوں نے تباہی برپا کر دی۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلابی علاقوں میں صورتحال مزید خراب ہو چکی، برساتی ریلوں، ندی نالوں کے باعث زمینی راستے بھی منقطع۔ مزید جان لیتے ہیں علی موسیٰ رضا سے۔ جی علی موسیٰ رضا، بتائیے گا۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلیمان میں موسلادھار طوفانی بارشوں کی وجہ سے کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں میں چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے، رود، کوئیاں جو ہیں آئی ہوں، جس کی وجہ سے قبائلی لوگوں کو انتہائی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان برساتی ندی نالوں کا مزید پانی آنے کی وجہ سے جو سیلابی علاقے وہاں پر صورتحال جو مزید خراب ہو گئی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کئی روز سے مسلسل کوہ سلیمان سے برساتی ندی نالے جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی روز سے قبائلی علاقوں کے جو راستے وہ منقطع ہیں۔ قبائلی لوگ جو ہے اپنے گھروں کو واپس نہیں آ سکے، جس کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی وہاں پر شدید قلت، کیونکہ قبائلی لوگ جو ہیں شہروں میں آ کر ہی اپنے کھانے پینے کا سامان خریدتے تھے، اور روڈ جو ہیں بالکل تباہ ہو گئے ان ندی نالوں کی وجہ سے۔ ابھی بھی جو ہے کوہ سلیمان پر وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مسلسل کوہ سلیمان کے دیگر جو قبائلی علاقے وہاں پر ندی نالوں میں شدید طغیانی اور پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ کہ ان طوفانی بارشوں کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی بڑھ گئے۔ علی موسیٰ رضا، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ڈی جے خان کوٹ چٹھا میں سیلاب نے مچایا طوفان، یونین کونسل ٹھٹا گبولا میں پانی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ ہو گئی، سیلاب کے باعث درجنوں گھر گر گئے۔ رضا ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور متاثرین کے ساتھ بھی مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی رضا ملک، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ خاصی ابتر ہے۔ نالا وڈور جو ہے وہ بہتا تھا یہاں، اور یہ نالا سالوں سے جو ہے وہ یہاں بہتا چلا آ رہا ہے پہاڑی ندی نالوں پہ، اور اس وقت بھی جو کوہ سلیمان پہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور وڈور ایک بڑی ندی ہے جو اپنے راستے پر سالوں سے بہہ رہی ہے، اور ہر سال جو ہے اس میں پانی آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے زیادہ بارشوں کے باعث پانی جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے جو اطراف کی آبادیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ چوٹی زیری اور اس کے ساتھ ساتھ جو بستی گبولا اور دیگر علاقے ہیں موضع قائم والا، وہ شدید متاثر ہیں، اور اس وقت بھی ان آبادیوں میں 4 سے 6 فٹ تک پانی جو ہے وہ موجود ہے۔ درجنوں گھر جو ہے وہ مسمار ہو گئے ہیں، ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور اس میں صورتحال اس طرح سے کہ یہ پانی جو ان آبادیوں میں آیا تو اس پانی کی واپسی نکاس کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور پانی یہاں اسٹک ہو گیا ہے، کھڑا ہے پانی۔ اس کھڑے پانی میں نہ صرف جو ہے وہ تعفن پیدا ہو رہا ہے بلکہ لوگوں کو یہاں مشکلات کا بھی سامنا ہے، جبکہ ہزاروں ایکڑ پہ کھڑی جو فصل ہے، جس میں چاول کی فصل ہے، کپاس کی فصل ہے، دالیں ہیں، چارہ ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لائف سٹاک بھی جو ہے مسائل کا شکار ہے، جبکہ اس ایریا میں جو کوٹ چٹھا تحصیل کوٹ چٹھا کا علاقہ ہے، یہاں پر آج جو سیلاب ہے تو یہاں 6 اموات جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اس سیلابی لہر کی وجہ سے۔ بچے اور خواتین بھی ان میں شامل ہیں، جبکہ اس وقت جو ہے شدید طور پہ جو کھڑے پانی میں جو ہے وہ طوفان کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل ہوا ہے۔ ہفت کا موسم ہے، آسمان پر جو ہے وہ بادل بھی موجود ہیں۔ متاثرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو ہے بالکل سیلاب کے ساتھ جو نہر کا کنارہ ہے وہاں ڈیرے لگا کے نیچے چادریں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کیا صورتحال ہے سی؟ صورتحال سے بہت ساری ہے، پانی زیادہ، فصلیں مکمل تباہ تھی گئے، مکانات مکمل تباہ تھی گئے۔ کمشنر صاحب آئے، اے سی صاحب جو ہی پانی آئے وہ آ گئے، انہیں سڑکوں امداد ہی دیتی ہے، راشن پانی دیتے ہیں۔ کیا امداد کیا ملی ہے آپ کو؟ امداد بس 2 کلو چینی، 2 کلو چاول، پتی، بس یہی امداد۔ مویشیاں دا ہن کیا فصلوں کا جڑا نقصان تھے وہ حوالے نال کیا گل کی؟ کروڑوں روپے کا نقصان تھی گئے سارے، فصلات ہیں، چاولیں دے، کپاہ دے۔ کیوں سے کیوں لے پہ جڑا نقصان تھے سی؟ السلام علیکم، میرے نام محمد اقبال ہے جی۔ فصلیں سارے تباہ تھی گئے، گھر بار سارے ختم تھی چکے ہیں، کوئی شے کا نہیں، بس لگاری صاحب نے مہربانی نے ایک آدھے آندے پہ بیاہ دے رکے پہ سارا ڈیا کشمکش لگی ہوئی ہے۔ سارا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی شے بھی اتنا نہیں پہنچی، کوئی نمائندہ یہ جہاں حاضر آج کے پہنچے، انٹرویو سارا تین پہ مہربانی ہے انہیں بھائی جان۔ جی بالکل، یہاں جو ہے وہ ریسکیو کے جوان بھی موجود ہیں جنہوں نے یہاں اس علاقے میں ریسکیو آپریشن کیا۔ ہاں جی، جو ریسکیو آپریشن کیا، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ باہر نکالا؟ سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ قبرستان میں بھی پانی داخل ہو گیا، آبادیوں میں تو ہے ہی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम जी। हमें रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातक हयात साहब और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नैयर आलम साहब की हिदायत थी और उनकी क़यादत में हसनैन रज़ा साहब के हुक्म पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 25 तारीख को। हमने यहाँ पे आके देखा क़यामत सुगरा का मंजर था। हर तरफ पानी पानी, शोर ही शोर था, लोग बह रहे थे। हर तरफ पानी ही पानी, पानी ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। रजा मलिक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। दरियाए चनाब में पानी की सतह रोज बरोज बुलंद। जिला इंतजामिया और महकमा इनहार की नाअहली से अवाम तंग आ गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी सैयद ज़ुहैब बुखारी, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर, जहाँ सैलाब आने के बाद जो यहाँ के मकामी अफराद हैं वो अपनी मदद आपके तहत वो उस हिफाजती मकाम पर नकल मकानी करें। मेरा कैमरामैन अगर आपको पीछे के मनाजिर दिखा सके तो अब भी जो यहाँ के मकामी अफराद हैं वो कश्तियों के जरिए एक हिफाजती मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो जो लोग हैं मकामी अफराद हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो कश्ती पर सवार करके वो एक हिफाजती मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं और नकल मकानी करें और यहाँ अपनी मदद आपके तहत ये लोग हैं वो मुंतकिल हो रहे हैं। मैं अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, अपनी मदद आपके साथ आप हिफाजती मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ना कोई टेंट वगैरह है, बारिश आती है भीग जाते हैं, ना कोई खाना राशन पानी नहीं है। मदद हम खुद कर रहे हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। पहले भी ये हालात सही थे, अब तो बिल्कुल ठीक नहीं है हालात। निक्के निक्के बच्चे हैं, दिन की है तो शाम की नहीं है, जो शाम की है तो सुबह की नहीं है। कहाँ जाएं? हुकूमत बनी है हिफाजत। तो हैदर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जामपुर मौजा हीरो में दरिया सिंध बिफर गया। पानी का दबाव बढ़ने से गुज़िश्ता रोज हफाजती बंद टूट गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही इलाका मौजा हैरो की दरिया सिंध के मकाम पर। दरिया सिंध ने हैरो फ्लड बंद के साथ जो मुलाका एक हिफाजती बंद थी उसको तोड़कर दरिया सिंध का पानी इस वक्त जो है मौजा हैरो के मुख्तलिफ मवाजात की जानिब रवां दमाए। अगर इंतजामिया के हवाले से बात करूँ तो इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इंतजाम सामने देखने को नजर नहीं आ रहे। लोग अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ट्रैक्टर्स भी लगाए हुए हैं और वो काम भी करा रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत फ्लड ये बंद जो है उनको जो है पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन, मजीद हम उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी ये पूछना ये चाहूँगा, क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से क्या कोई इंतजाम सामने आ रहे हैं या आप क्या कहना चाहेंगे, कोई अपने मुतालबात? कोई इंतजाम हुकूमत ने किए, हम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं। ये सब इलाके के जिम्मेदार हम लोग हैं, हम चंदा अपना इकट्ठा किए हुए है। इधर का MP जो है हसनैन बहादुर है वो भी नहीं आया, कोई इंतजाम या AC वगैरह कोई नहीं इधर आया। हम अपनी मदद आप काम कर। कोई इंतजाम नहीं है। सैयद बुखारी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरदार, होशियार, अभी भी सैलाब का खतरा है बरकरार। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता रहा है। दरिया चनाब पर हेड पंजनत के मुकाम पर पानी की आमद 1,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जतोई और अलीपुर में 16 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। हेड तौंसा पर पानी की आमद 3,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं सैलाब का खतरा अभी भी बरकरार है। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। हेड तौंसा पर पानी की आमद 3,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खबरदार, होशियार, सैलाब का खतरा अभी भी बरकरार है। अलीपुर में हालिया बारिशों का तरक्याती मंसूबों पर पड़ गया भारी। 2.25 अरब से तामीर होने वाला चंदरभान सुपर बंद हस्ता हाली का शिकार हो गया। कंदरराला के मकाम पर बंद में जगह जगह गहरे शगाफ पड़ गए। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से हिफाजती बंद टूटने का खतरा है। हजारों एकड़ रकबे पर फसल और आबादी को शदीद खतरात लाहक हैं। इलाका मकीन का चंदरभान सुपर बंद की फौरी मुरम्मत का मुतालबा आपको अपडेट कर रहे हैं। अलीपुर में हालिया बारिशों की तरक्याती मंसूबों पर भारी पड़ गया है। 2.25 अरब से तामीर होने वाला चंदरभान सुपर बंद हस्ता हाली का शिकार हो गया है।
जतोई का शहर सुल्तान सैलाब ने किया वीरान। दरिया चनाब के मुकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। 25 बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो चुकी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात भी तबाह हो गई। सैलाब से मुतासरा मकीन खुले आसमान तले मसीहा के मुंतजिर। सैलाब मुतासरीन इमदादी कार्रवाइयां न होने पर शिकवा के ना। सैलाब से मुतासरा अफराद की वजीर आजम और वजीर आला से इमदाद की अपील। आपको बता रहे हैं जतोई का शहर सुल्तान सैलाब ने किया वीरान। दरिया चनाब के मुकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। 25 बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्रार राना से। जी इब्रार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील जथील जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान दरिया चनाब पर मौजूद हैं, जहां पर जो इस टाइम जो दरिया चनाब में पानी की आमद है वो 1,03,000 क्यूसेक के करीब है और यहां पर जो पानी का अखराज है वो लगभग 96,000 क्यूसेक के करीब है। हमारे साथ यहां पर कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहां पर किस तरह से जो दरियाए चनाब के सैलाब ने उनको मुतासर किया है, वो किस तरह से खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं और आया कि जो हुकूमती सतह पर या तहसील इंतजामिया की जानिब से या जिली इंतजामिया की जानिब से क्या उनको रिलीफ देने के लिए इकदाम किए हैं। जी सिर्फ क्या हालात है? बारिश चले तो सैलाब में जई मकान सारे गिर गए, निके निके सारे बच्चे, कोई गुजारा करने ना कोई आशा सको ना सको, कोई इमदाद मिली ना कोई ना हमें कोई इमदाद मिली है। इब्रार, शुक्रिया आपका, अपडेट कर रहे थे। खबरदार होशियार, सैलाब ने मुतासरीन का जीना कर दिया दुश्वार। सैलाब की वजह से जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही। पीडीएमए ने 15 जून तक 30 जुलाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मानसून और सैलाब से 4 लाख एकड़ से ज्यादा अरासी मुतासिर हुई। 1.5 माह में 10,797 घरों को नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ हादसात में 85 अफराद हलाक हुए। सैलाब से 28 अमवात हुई। 28 अफराद और मानसून के दौरान 69 अफराद जख्मी हुए। इमदादी टीमों ने 2,462 अफराद को रेस्क्यू किया। खालिया मानसून और सैलाब से 3,036 जानवर हलाक हुए हैं। महंगाई रे महंगाई, हर तरफ मच चुकी दुहाई। महंगाई ने 14 साला रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता माह महंगाई में 4.35% इजाफा हुआ। एक माह में सब्जियां 24% महंगी हुई। गुज़िश्ता साल जुलाई की निस्बत इस साल महंगाई में 24.93% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की एक माह की रिपोर्ट जारी। महंगाई रे महंगाई, हर तरफ मच गई दुहाई। महंगाई ने 14 साल रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता माह महंगाई में 4.35% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। एक माह में सब्जियां 24% महंगी हुई। गुज़िश्ता साल जुलाई की निस्बत इस साल महंगाई में 24.93% इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात की एक माह की रिपोर्ट जारी। गरीब की सवारी जेब पर बहुत ज्यादा भारी। बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सुनामी गरीब तबके की सफारी छीनने लगा। सुजुकी और यामाहा के बाद होंडा कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, गरीब की सवारी जेब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगी। बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सुनामी गरीब तबके की सवारी छीनने लगा। मजीद इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा रोही राना बिलाल से। में इजाफे का सुनामी गरीब की सवारी छीनने लगा। बात करें मोटरसाइकिल कंपनियों की तो सुजुकी और यामा के बाद होंडा कंपनी ने भी जो है बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर इसी हवाले से बात करें, होंडा CD70 जो है इस वक्त 5,000 बढ़कर 1,16,500 रुपये में मार्केट में फरोख्त की जा रही है। इसके साथ ही होंडा CD ड्रीम 70 जो है 5,000 रुपये बढ़कर 1,24,500 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इसके साथ ही होंडा 125 जो है CG 3400 बढ़कर 2,10,900 रुपये में मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दिन ब दिन जो है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दुकानदार भी परेशान है, शहरी भी परेशान है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 63,500 रुपये की 70 1,16,500 में हो गई है पिछले एक साल में मोटरसाइकिल की कीमत डबल हो गई है। ये गरीब की सवारी है। अब एक तनख्वाहदार बंदा है जिसका 30-40 हज़ार रुपये का पैकेज है, वो पहले 3 माह की सैलरी रोके और फिर जाके बाइक खरीदे। साइकिल तो अब रह नहीं गई।
अच्छा 70 गरीब बंदे की पहुंच में है। अब जो चाइना की बाइक हम 40-42 हज़ार की सेल करते थे, 80 हज़ार रुपये की चाइना की बाइक हो गई। अच्छा, 3 महीनों के अंदर जो बाइक की कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से? सर 3 महीने में कम से कम एक मोटरसाइकिल ने 20,000-25 हज़ार रुपये जंप खाए। जापानीज मोटरसाइकिल ने, होंडा ने, यामा ने 3 माह के अंदर 90,000 रुपये रेट बढ़ाया है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है जी, क्या कहेंगे, दिन ब दिन हुकूमत की जानिब से बाइक्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं? जी हर रोज़ नया रेट होता है इनका। मोटरसाइकिल लेने आते हैं, अगले दिन रेट इनका चेंज होता है। बस से हमारे अब पहुंच से भी दूर हो गई मोटरसाइकिल। क्या हुकूमत से क्या मुतालबा है? रेट इनके कम किए जाएँ, कंट्रोल किए जाएँ रेट इनके। जहाँ पे हैं चलो वहाँ पे रोकें, हर दूसरे चौथे इनका रेट बढ़ जाता है। 10,000 15,000 हर दूसरे चौथे रेट मज़ीद तो अप हो जाते हैं। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हम पैसे तो इकट्ठे करते हैं मोटरसाइकिल। राना बिलाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। गरीब आखिर जाए तो कहां जाए? डीजल की कीमत में इजाफे ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। कीमतें बढ़ने से महंगाई की नई लहर सामने आ गई। कीमतों में इजाफे से महंगाई में भी इजाफा हुआ है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से एक बार फिर डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में इजाफा होते ही जो है वो महंगाई की एक नई लहर का सामना करना पड़ेगा शहरियों को। शहरी जो है पहले महंगाई से परेशान है। तो बात कर लेते हैं, मैं इसमें मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर। आप बताइएगा, डीजल लेने आए हैं, फिर जो है वो डीजल महंगा कर दिया, क्या कहते हैं आप? बस इसी चीज़ की परेशानी है कि नई हुकूमत पुरानी साबिका हुकूमत से हम बहुत परेशान हैं। आए दिन पेट्रोल और डीजल में इजाफा हो रहा है। आप सोच नहीं सकते कि इंसान अपनी महंगाई से कितना तंग है। 24 घंटों में से भी अगर 12 घंटे भी बिजली दे देना तो बड़ी बात है, बिजली भी नहीं आ रही है। और डीजल इतना महंगा है कि रात को देखते हैं कि क्या प्राइस और सुबह देखते हैं कुछ और प्राइस हो जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। हम तो सिर्फ इनसे गुजारिश करते हैं वज़ीर आज़म से कि वो हमारी इन गुजारिशों पे अपील करें कि पेट्रोल और डीजल में थोड़ी सी नुमाइश करो। वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं। अपडेट आपका शुक्रिया। लियाकतपुर अल्लाह चौक पर अंजुमन ताजरान एक दफा फिर मैप्को के जालमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। जी एक दफ़ा फिर आज अल्लाह चौक पे अंजुमन ताजरान जो है ये सरापा एहतजाज है मैप्को के खिलाफ। मैप्को के जालमाना जो टैक्स हैं इसके खिलाफ। गवर्नमेंट कहती है कि जी टैक्स दो। जो अंजुमन ताजरान है वो कहते हैं कि टैक्स के पैसे ना हैं, कारोबार ना है। आज एक दफ़ा फिर जो है अंजुमन ताजरान की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे अल्लाह चौक पे मौजूद है। सरापा एहतजाज है, नारेबाजी की जा रही है। इन्हीं से जानते हैं। जी हुकूमत कहती है कि टैक्स दो, जालमाना टैक्स है। आप लोग कहते हैं कारोबार नहीं है, पैसे नहीं है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट के बारे में? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो जालमाना टैक्स का नफाज किया है और बड़े आराम से कह दिया है कि छोटे दुकानदारों को मैं कहता हूँ कि 36,000 रुपया सालाना टैक्स दें। और बंदा इनसे पूछे कि 36,000 में हम साल में कमाई नहीं करते, हम कहाँ से टैक्स दे सकते हैं 36,000 रुपया। और ये असल में हमारे जो हुक्मरान हैं जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, ये अवाम की खाल उतारते हैं। एसी वाले दफ्तरों में बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं। इनकी बिजली फ्री है, इनकी हर चीज़ फ्री है। और हम ये अवाम एहतजाज कर रहे हैं बहुत जल्द। खाने के पैसे नहीं, हम कहां जाएं? हसन महमूद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ज्यादा महंगाई में मामूली रिलीफ क्या कम हो सकेगी? कभी अवाम की तकलीफ। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में 3 रुपए किलो की कमी कर दी जा चुकी। एलपीजी की फी किलो कीमत 218 रुपए मुकर्रर हो चुकी। घरेलू सिलेंडर 30 और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,571 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9,893 रुपए हो चुकी। आपको बता रहे हैं ज्यादा महंगाई में मामूली रिलीफ क्या कम हो सकेगा आवाम की तकलीफ। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में 3 रुपए किलो की कमी कर दी गई। एलपीजी की फी किलो कीमत 218 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 30 और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,571 और कमर्शियल सिलेंडर 9,893 रुपए का
हो गया है। मुल्तान प्रेस क्लब में टैक्सों के खिलाफ मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। सारा दिन बेचारा दुकानदार दुकान खोलता है, रात को वैसे वापस चला जाता है, साथ मिला नहीं होती। तो इन हालात में वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, वो रेंट देगा या वो टैक्सेस देगा। और जबकि हमारे साथ एक और बात जो हुई थी उसमें ये भी बात शामिल थी कि जी उसमें से जो बिलों में पहले इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ये जो टीवी टैक्सेस हैं और जो और टैक्सेस हैं वो सारे ख़त्म करके एक टैक्स लगाया जाएगा। जबकि इनकी बददियानती ये देखें कि वो सेल्स टैक्स भी वैसे है, वो इनकम टैक्स भी वैसे है, वो टीवी टैक्स जो और टैक्सेस हैं वो भी वैसे के वैसे हैं, और साथ लगा दिया गया कि रिटेलर टैक्स। और कल सबसे बड़ा एक वो कह दिया कि जी हम देखें ना, यहाँ भी एक बात नहीं है कि हम 100 यूनिट या 150 यूनिट इनको जो है ना मुस्तस्ना दे देंगे कि भाई हम तो इस टैक्स को मानते ही नहीं, हमने 100-150 यूनिट को क्या कहना है। या तो हम इस टैक्स को माने तो तब बात है। रात मुझे फोन आया कि जी देखे जी रात 11 बजे कि जी मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि जी सुबह आके हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। मैं तो नहीं गया, हमारे सदर इस्लामाबाद बैठे, मैंने कहा जी रात को 11 बजे इतला आ रही है, सुबह 10 बजे हम इतने भी वो नहीं है कि जी यहाँ से अब हम जाए इस्लामाबाद से, या कोई कराची में बैठा हुआ है या कोई कोयटा में बैठा हुआ है, तो कैसे वो रात को 11 बजे इतला दे सुबह आ जाए जी 10 बजे। मैंने जी हम तो नहीं आते, वो हमारा एक नुमाइंदा गया है, तो मगर वहाँ पर अभी तक कोई हल नहीं निकला। वो सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं जो हो रही हैं। तो हम इंशाल्लाह, आपने देखा कल भी हमने एहतजाज किया है, हम पिछले कई दिनों से एहतजाज पर हैं। और हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की वफात पर हाईकोर्ट मुल्तान में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद किया गया। रेफरेंस में जस्टिस चौधरी मासूद जहांगीर हाईकोर्ट बार मुल्तान के वकला से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। मैं और आप अगर इस रिश्ते को समझ जाएं कि कैसे निभना है, कैसे निभाना है, तो फिर सूरह असर के मुताबिक हम खसारे में नहीं हैं। वहां पे है कि हर इंसान खसारे में है मगर सवाए उनके जो ईमान लाए। आज इस गम की घड़ी में मुझे और आपको शिद्दत से एहसास है कि अगर अब्बासी साहब नहीं रहे तो मुझे और आपको भी नहीं रहना। आखिरी सांस से पहले कोई देर नहीं है। मैं समझता हूं हर आने वाला सांस सिर्फ 2 कामों के लिए है कि मैं अपनी इस्लाह कर लूं और पिछले की तौबा कर लूं। और अगर 42 PMS अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की हुई। मोहम्मद नसरुल्लाह खान, अवैस नवाज और अब्दुल राज़िक की ग्रेड 18 में तरक्की हुई है। राना ज़ियाउल्लाह खान, तस्नीम अली की ग्रेड 18 में तरक्की। मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अकबर और अली आतिफ की ग्रेड 18 में तरक्की हुई है। नोमान फरूक तारड़ और नवीद इस्लाम वर्क की ग्रेड 18 में तरक्की। आसिफ हुसैन, शाह मोहम्मद, सुहेल अख्तर की ग्रेड 18 में तरक्की। मोहम्मद नजीब, आसिम सलीम की भी ग्रेड 18 में तरक्की। इनके साथ राना आफ्ताब अहमद एहसानुल्लाह की, मोहम्मद अजीम रुब्बानी, अल्ताफ हुसैन की, सैफुर रहमान, मुजाहिद अब्बास की भी ग्रेड 18 में तरक्की हुई। शाहिद महबूब, मोहम्मद इमरान, इमरान मुनीर, इमरान मुमताज खान की भी ग्रेड 18 में तरक्की हुई है। रहीम यार खान में डीसी ऑफिस में माहाना खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं सैयद मूसा रजा से। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में माहाना खिदमत रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, ADCR, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम महकमों के यहाँ पर काउंटर्स भी लगाए गए हैं ताकि आवाम के मसाइल का हल किया जा सके। ADCR अब्दुल लतीफ़ खान हमारे साथ मौजूद हैं। ADCR साहब, ये रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी है जिसका मकसद रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल को हल करना है, तो क्या देखते हैं कि रेवेन्यू के मसाइल किस तरह से, उनको हल कैसे किया जाए? जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया कि यहाँ एक ही छत के तले हमने तमाम सहूलियात मुहैया कर दी हैं।
यहाँ पे मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद होंगे, यहाँ तहसीलदार भी मौजूद होगा, यहाँ पे पटवारी भी मौजूद होगा और इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर का इंचार्ज भी यहाँ पे, उनका भी हमने काउंटर बना दिया है। रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मसाइल लोगों के होते हैं वो एक ही दिन में हमारी एक ही छत के तले हम उसको हल कर देते हैं। इजाफी तौर पे भी यहाँ हमने एक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काउंटर भी बनाया हुआ है, अगर उनका भी कोई इशू होता है हम उसको भी हल करते हैं। यहाँ तहसीलदार साहब भी बैठते हैं, अगर कोई रजिस्ट्री है वहाँ कोई इशू है वो भी हमारा समझ लें कि वन विंडो ऑपरेशन है, उसी दिन उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। और इंतकाल से आसिम सद्दीक, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया महकमे रेवेन्यू की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, बताइएगा। आवाम की सहूलत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। रेवेन्यू से रिलेटेड तमाम जो है मसाइल एक ही छत पर हल किए जा रहे हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया हमारे साथ मौजूद हैं, राजा कासिम साहब, उनसे जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह से प्रॉपरली हर महीने जो है 1 तारीख को ये सिलसिला जारी है और किस हद तक आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाता है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो खुसूसी डायरेक्शंस हैं कि रेवेन्यू के जो मसाइल हैं उनको एक ही छत के नीचे हल करने के लिए महीने के पहले 2 दिन जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए। इसी सिलसिले की कड़ी है आज यहाँ पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का जो इनेकाद किया गया है और लोगों के जो मौके पर मसाइल हल हो सकते थे वो किए गए हैं। जो टाइम दिया जा सकता था वो हमने रेफ़र किए हैं कि मौके की रिपोर्ट लेकर और प्रॉपर हम इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे कि वो भी ऑन मेरिट एज़ पर लॉ जो है ना उनको रिजॉल्व करें और जल्द अज जल्द करें। सेकेंडली हमारी कोशिश है कि एक ही छत के नीचे हम तमाम जो हमारा रेवेन्यू फील्ड स्टाफ वो हो और आवाम को जितनी बेहतर से बेहतरीन सहूलतें रेवेन्यू के रिलेटेड दी जा सकती हैं वो दें। रेवेन्यू से रिलेटेड दी जा सकती हैं दें। इस वक्त हमारे पास डीएसपी सादा साहब भी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं जी अहमदपुर शर्किया में आपको। माशाल्लाह से नई पोस्टिंग है इनकी, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप शहर को देख रहे हैं और किस तरह से मसाइल जो है वो हल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये एसी साहब ने यहाँ पे खुली कचहरी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, हम हर फ्राइडे को मस्जिद में खुली कचहरी का एहतमाम करते हैं ताकि लोगों को और आवाम के और पुलिस के दरमियान फासलों को कम किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल, फासलों को कम किया जा सके। इस हर इतवार को मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इमरान अकबर, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में डीसी मोहम्मद यासिर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यासिर साहब ने आज जो है डीएचक्यू अस्पताल का तफसीली दौरा किया और दौरे के दौरान यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात को देखने के साथ साथ मरीजों से यहाँ पर हाल भी दरियाफ्त किया। सीयू हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला साहब के एमएस डॉक्टर सैम बतूल साहब ने उनको तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर डीसी साहब से बात करें, सर कैसा देखा डीएचक्यू सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि ये मेरा पहले विजिट था, बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पर जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, उसे देखा जाए। और एक मकसद ये भी था कि हम, क्योंकि आजकल फोकस ज़्यादा डेंगू पे है, तो यहाँ पे डेंगू के सेपरेट जो वार्ड्स वो इस्टेब्लिश्ड हैं, जितने भी SOPs हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। एमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट है, सिटी स्कैन है और आई एम ग्लैड कि यहाँ पे लिया जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक ज़बरदस्त हेल्थ फैसिलिटी है, वेल मेंटेन है, सफाई सुथराई का मेयार बहुत बेहतर है और पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो मज़ीद करें। सर जिन चीज़ों की कोशिश करेंगे, कहना था। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।